So let us start the session. Today we are going to start session number 1 of chapter number 13, symmetry. In this session we are going to see the introduction and line symmetry, and we'll complete the first exercise 13.1. So let us start with the first topic, symmetry, introduction part. So symmetry is quite a common term which is used in our day-to-day life, right? When we see certain figures, when we see certain figures, when we see butterfly and some objects which looks very beautiful, in that figures with evenly balanced proportions are there, we say that they are symmetrical. ठीक है, कोई भी चीज़ें हमको बहुत अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है. अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो वो चीज़ हमको देखने में अच्छी नहीं लगेगी. See, and one of the most beautiful symmetrical building is the monument is the Taj Mahal. ओके, यहाँ पे देखो, अगर ताजमहल को अगर हम लोग बीच में से एक लाइन ड्रॉ करके देखें तो दोनों तरफ इक्वल है, सेम है. ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड. सो दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल, एंड बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ सिमेट्री इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड विल सी वन मोर एग्जाम्पल. ओके, तो ये ताजमहल है और ये अन्नामलाई यार टेम्पल है, तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु में. इसमें भी देखो, कोई भी टेम्पल, हर टेम्पल में इफ़ यू सी यू विल फाइंड सिमेट्री. ठीक है, तो इसमें भी देखो ये वर्टिकल सिमेट्री है. दिस पिक्चर्स ऑफ आर्किटेक्चरल मार्बल आर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री. नाउ विल मूव टुवर्ड द लाइन सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री. Suppose we could fold a picture in half, such that the left half side and right half sides both matches exactly. Then the picture is said to have line symmetry. ठीक है, we can see two halves are mirror image of each other. See this example. अगर यहाँ पे बटरफ्लाई का ये वाला लाइन अगर देखोगे तो this part is a mirror image of this part. ठीक है, सेम फॉर दिस लीफ ऑल्सो एंड सेम फॉर दिस पार्ट ऑल्सो. सो इफ यू प्लेस अ मिरर ऑन द फोल्डेड, then image of one side of the picture will fall exactly on the other side of the picture. So thus, if we can fold a picture or any figure in two halves such that two halves match exactly each other exactly, two halves match each other exactly, then the picture or figure is said to have a line symmetry. ठीक है, the line from where, now listen to carefully, line symmetry or line of symmetry. ठीक है, the line from where we folded the picture is called the line of symmetry. उसको हम लोग axis भी बोलते हैं, axis of symmetry of the picture. Okay, so a figure has line symmetry if a line can be drawn dividing the figure into two symmetrical parts. The line is called a line of symmetry. ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज दिस इज अ स्टार फिश and this dotted line in this figure shows the line symmetry. Why? Because it divided the this figure exactly into two symmetrical parts. And when figures have equally balanced proportion, then they are said to be symmetrical. Otherwise, asymmetrical. ठीक है, not symmetrical. See these examples. ये ट्री को देखो, ये जो लाइन है वो एग्जैक्टली टू सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, तो ये सिमेट्रिकल है. बट व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज नॉट सिमेट्रिकल. सो सच टाइप ऑफ फिगर्स वी सेड टू, इट इज सेड टू बी असिमेट्रिकल फिगर. विल सी टू मोर एग्जांपल. सी, यहाँ पे ये जो लाइन है एग्जैक्टली टू सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये सिमेट्रिकल है. बट यहाँ पर ये नहीं है, दिस इज नॉट ए सिमेट्रिकल. Okay, so now we will learn how to create symmetrical figures. So there are few methods to create a symmetrical figures. First is using inks. ठीक है, what we will do, we will take a piece of paper and fold it half. उसको half fold कर देंगे. उसके बाद एक पिक्चर हम लोग एक साइड में ड्रॉ करेंगे. ठीक है, with ink. Draw a picture on one half with ink and then press the half together. उसको फिर प्रेस कर देंगे. सो प्रेस कर देंगे तो देखो, एक पीस हम लोग पेपर लिए, उसको हाफ फोल्ड किए हम लोग हाफ, और यहाँ पे हम लोग इंक से पिक्चर बना रहे हैं. पिक्चर बनाने के बाद फिर पेपर को एकदम फोल्ड कर दिए, प्रेस कर दिए. सो प्रेस करने के बाद फिर जब हम लोग ओपन करेंगे
So what we will see, this type of figure. Unfold and see that the resulting figure is symmetrical as shown in below figure. It has a line of symmetry. तो जहां से हम लोग fold किए वो है line of symmetry. Okay, the line of symmetry for the figure is the line where from where we folded the figure. So this is the way to create symmetrical figure using ink. Now we'll see using threads. So instead of ink, we can use a thread which is dipped in color paint. ठीक है, एक थ्रेड लेके उसको कलर में डिप करो. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको पेपर, हम लोग अभी जो पेपर लिए थे उसको जो हाफ किए थे वो एक साइड रखो, उसको एक साइड रखने के बाद फिर प्रेस करो. सेम थिंग व्हाट वी डिड इन द यूजिंग इंक. प्रेस करने के बाद जब हम लोग उसको अनफोल्ड करेंगे तो सेम फिगर यू विल गेट ऑन द अदर साइड, right, this side. So this is the second way to create using threads. Okay, now we'll see few examples. Identify whether line L and M are lines of symmetry of the given figure. So ध्यान से देखो, अगर हम लोग L की बात करें, ठीक है, so L उसको exactly दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. See, the line L divides this figure exactly into two halves. And these two halves will matches, जब हम लोग fold करेंगे they will match exactly. ठीक है, both the halves. Now let us see for M. M को अगर हम लोग fold करेंगे तो exactly match नहीं करेगा. देखो fold किए हम लोग, ये वाला जो point है वो यहाँ पे चला गया, ये जो tip है, when we fold it will go to this side. देखो यहाँ पर, so these two will exactly not coincide with each other. So therefore line L is a line of symmetry where line M is not a line of symmetry. ठीक है, now we'll see, we'll start exercise 13.1. List any 4 symmetrical objects from your home or school. कोई भी, जैसे अभी ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो इज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्योंकि उसको हम लोग दो हाफ में कर सकते हैं. माई कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो देयर, बुक ऑल्सो देयर, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, टेबल टॉप. सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सो उसमें से मैं कोई 4 ले रहा हूँ, राइट. ब्लैक बोर्ड, बुक, टेबल टॉप एंड कंप्यूटर डेस्क और कंप्यूटर मॉनिटर ऑल्सो, राइट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन. ओके, तो लाइन ऑफ सिमेट्री को हम लोग मिरर लाइन बोलते हैं. ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री को, तो जो लाइन फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है सच दैट दे विल coincide with each other exactly. Such line is called line of symmetry and that line is also called mirror line. तो यहाँ पे देखो जो लाइन L1 है, L1 जो लाइन है वो exactly कवर नहीं कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, लाइन L1 जो है वो exactly कवर नहीं कर रहा है अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो, क्योंकि ये वाला टिप जो है वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, लेकिन जब लाइन L2 जो है, देखो इस साइड भी सेम है और इस साइड भी सेम है, जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो इट विल एग्जैक्टली कवर. ओके, सो फॉर द L2 is the mirror line of the figure. When given figure is folded about the line L2, the left part exactly covers the right part. Okay, but line L2 is not a mirror line because it will not cover exactly the upper part and the bottom part when we fold through L1. Right. Now identify the shapes given below, check whether they are symmetric or not. Draw the line of symmetry as well. ठीक है, तो let us start with the first one. हम लोग देखो यहाँ से exactly एक line draw कर सकते हैं. ठीक है, symmetry. Yes sir, it's a So symmetry. yes, it is a symmetry. Now we will see one by one. Okay, तो यहाँ पर भी हम लोग एक vertical line draw कर रहे हैं तो दोनों part same है. So yes, this is also symmetry. बट इधर हम लोग ऐसे वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहे हैं. No sir, it is ठीक not है, a symmetry. डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तीनों काम नहीं कर रहा है यहाँ पर. सो इट इज नॉट सिमेट्री. राइट. नाउ टेलीफोन. Yes sir. यस Sir, it is a symmetry. यस, अगर वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो सिमेट्रिकल होगा. यहाँ पे वर्टिकल काम नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल काम आएगा. देखो, हाँ sir. so both parts are equal, divided into two equal parts. Okay, so D is a symmetry and E is also symmetry, right, and F also symmetry. देखो यहाँ पर भी vertical काम कर रहा है
ठीक है, और डायगोनल भी काम करेगा। तो टोटल यहाँ पर हम लोग 5, बिकॉज इट इज अ रेगुलर पेंटागन वी कैन मेक 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यस, it is symmetric. So this is question number 3. Now we are moving toward question number 4. Copy the following on a squared paper. The square paper is what you would have used in your arithmetic notebook in earlier classes. Then complete them such that the dotted line is the line of symmetry. You can use the graph paper also because graph paper भी squared paper होता है, ठीक है। सो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। तो ये वाला हम लोग यहाँ पे देखो इस पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट साइड, अभी राइट साइड फिगर दिया हुआ है एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, सो वी हैव टू ड्रॉ दिस साइड। ओके, सो देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है, सेकेंड लाइन, राइट। सो दिस साइड फिगर इज कंप्लीटेड। तो ऐसे हम लोग को सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन, चलो स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से। ओके, तो ये वाला भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्रॉस में आएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर आएगा। देखो दो यूनिट तक गया यहाँ पर। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू ड्रॉ 2 यूनिट्स डाउन, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट्स अप गया है, ठीक है, और यहाँ से भी 2 यूनिट्स डाउन करेंगे। फिर उसके बाद ये दोनों को ज्वाइन करेंगे। सो ये फिगर कंप्लीट हो गया। देखो दोनों साइड एग्जैक्टली हो गया, राइट। सो दिस इज बी बिट। नाउ सी बिट, राइट। तो यहाँ पे देखो 4 यूनिट्स है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, राइट, ड्रॉ कर दिए। उसके बाद एक यूनिट यहाँ वर्टिकल है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, राइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक यूनिट है, तो यहाँ पे वर्टिकल। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है वो नहीं, वर्टिकल जो है वो 2 यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पर 2 यूनिट ड्रॉ करेंगे, राइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 1 यूनिट है, इसलिए यहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। एंड वर्टिकल हियर 3 यूनिट्स आर देयर, देन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हम लोग 3 यूनिट्स ड्रॉ करेंगे। सो हम लोग का ये एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया मिरर इमेज, राइट। दिस इज सी बिट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड डी बिट। यहाँ पे देखो ये वाला फिगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे देखो ये डायगनल है, यहाँ पर डायगनल 2 स्क्वायर ग्रिड में है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया। नाउ 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल वी हैव टू मेक, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। नाउ इट इज कंप्लीटेड, ठीक है, दोनों साइड सेम आ गया, देखो, राइट। नेक्स्ट वन, ये वाला फिगर हम लोग स्क्वायर ग्रिड में ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से डायगोनल 2 बॉक्स पे जाना है, देखो, फर्स्ट। नाउ अगेन डायगोनल दिस 2 बॉक्स, सेकेंड, नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स तक गए। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आना है। दिस इज करेक्ट? नो, यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल में 2 बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल में 2 बॉक्स डायगोनल ड्रॉ करना है। अब उसके बाद इसको ज्वाइन कर दो। नाउ इट इज कंप्लीटेड, ओके। नाउ द लास्ट वन, नाउ दिस इज द टिपिकल वन। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, पूरा डायगोनल है। लाइन ऑफ सिमेट्री जब डायगोनल है तो मिरर इमेज में रिवर्स करना है, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 2 है तो वर्टिकल 2 बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्टिकल 2 है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 2 बनाना है। नाउ डायगोनल इज देयर, ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करना है हम लोग को, राइट। नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल 2 यूनिट, तो वर्टिकल 2 यूनिट ड्रॉ करना है। नाउ हॉरिजॉन्टल 2 यूनिट्स, सो सॉरी वर्टिकल 2 यूनिट्स, so यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 2 यूनिट्स। नाउ हॉरिजॉन्टल 1 यूनिट तो वर्टिकल 1 यूनिट। नाउ डायगोनल, नेक्स्ट यहाँ पे वर्टिकल है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द लास्ट बिट ऑफ 4th क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 5th क्वेश्चन, ओके। In the figure, line L is the line of symmetry. Complete the diagram to make it symmetrical. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो
यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे और इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला जो फिगर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज क्लियर। Now we are moving toward the last question of the exercise. In the figure, L is the line of symmetry. Draw the image of the triangle and complete the diagram so that it becomes symmetric. तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड में यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पर भी हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो, ठीक है। और ये ट्राइंगल अभी इसमें राइट साइड में आया वर्टेक्स, तो हम लोग को लेफ्ट साइड में यहाँ तक आए करीब करीब, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको ये ऐसे मिलेगा। सो दिस इज द इमेज ऑफ दिस वन with respect to this line of symmetry, right? So this is the last question of this exercise, this session. Now we are moving toward our last section, assignment questions, right? You have to, in the first question you have to identify whether L and M are the lines of symmetry or not. Next question mein which line is the line of symmetry that you have to identify. So this I will share with you through Google Classroom. So that's all for today's session. Thank you very much.